Resonates in leading journals, universities and digital platforms where he actively engages with students and readers. We have with us Mr. Satyarth Anirudh Pankaj, an accomplished Indian Police Service IPS officer, writer and literary thinker, known for his administrative excellence and contribution to Hindi literature, a 2010 batch IPS officer throughout his career. He has held key positions in the Uttar Pradesh Police Department, including as Senior Superintendent of Police in Prayagraj, where he led critical investigation and operation. Exemplary service has earned him the Director General's Commendation Disc, Silver 2019 and Gold 2023. Beyond policing, of course, he is a passionate Hindi literary figure, actively engaging in literary discussions and forums. We have with us Dr. Shishir Somvanshi, celebrated Hindi poet, storyteller, environmentalist, known for his evocative poetry on love, nature, and human relationship. He has authored 3 acclaimed poetry collections, Mopang ke baad, Apne Apne Moksh, and Atma ka Ardhansh, with his forthcoming work, Shayad Tumne Ho Pehchana, eagerly awaited by readers. Beyond poetry, he has contributed over 15 books on forestry and environment and awareness as well, reflecting his deep commitment to ecological issues. A forestry scientist and senior professor at the Indian Railways Institute of Transport Management, he's also the founder of Artists for Environment, a collective promoting environment consciousness through creative expression. And the session will be moderated by Mr. Rajneesh Trivedi, a prominent Indian journalist, editor, literary figure known for his significant contribution to Hindi journalism. He is currently serving as the chief editor of Navodit Prabha, a respected Hindi literary weekly published in Dehradun. Under his leadership, the publication has already earned recognition for its insightful content and contribution to the field of literature. He was honored with the Ganesh Shankar Vidyarthi Journalism Award in 2022, acknowledging his outstanding work in Hindi journalism. Apart from his role in the media, he is also actively involved in the scientific community as a Prime Secretary of Vigyan Bharati, Madhya Pradesh, a science movement aimed at promoting scientific awareness and education across India. So what a wonderful panel. Can we have a big round of applause as we invite them on stage for this one, on Pulp Fiction. Can we have all the gentlemen here on stage? Once again, Mr. K.D. Singh, Mr. Satyarth Anirudh, Mr. Dr. Shishir Somvanshi, and Mr. Rajneesh Trivedi. All right, I am going to do this with a Hindi film dialogue. We are going to Pulp Fiction, so I'll start with a very serious Hindi film dialogue. छोटे छोटे शहरों में कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है. So I have just done a blunder right now. So I would like to correct myself. We have moderator Rajneesh Trivedi ji, yes, but apparently the profile that I just read was of someone else. We have Brigadier Rajneesh Trivedi ji, who writes in Hindi, regularly contributes to various portals, and also has one book to his credit. So Maafi Rajneesh ji, and yes, over to you for this session. Thank you. Namaskar, Bhubaneswar. Apna Kemiti Ashanti. This much Odia one can pick up. Language is no barrier, as has been told since last 48 hours. We have been all the languages. We are listening, reading and going through. साहित्य का ऊंचा आयाम हमने कल से देखा है. देवदत्त पटनायक, शशि थरूर और जितने नामचीन नाम आप सोच सकते हैं, ममता कालिया जी, गगन गिल जी, सारे लोग थे अलग अलग भाषाओं के और अपनी विधा को साझा कर रहे थे बातचीत में. ये साहित्य का उच्चतर आयाम देखा आपने. आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि साहित्य का एक दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू, जो शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि काला है या कुछ लोग कह सकते हैं कि निम्न है, पर लेकिन वो बड़ा ही मजबूत पहलू है. और अगर मैं ये कहूं कि 80s के जो भी लोग हैं, 80s किड, कोई भी उससे अछूता नहीं रहा होगा. टेलीविजन के उद्भव से पहले वही सबका साथी था और मानव की जो 3 जरूरतों के अलावा जो चौथी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद, वो है मनोरंजन. और उस मनोरंजन का बस एक ही साथी था उस जमाने में 60 से लेके 90 के दशक तक, और वो था पल्प लिटरेचर या पल्प फिक्शन. हिंदी में अगर उसको कहते हैं लोग तो पल्प का शाब्दिक लोग कह देते हैं उसको लुगदी साहित्य कहते हैं, कोई निम्न साहित्य कहता है, कोई उसको कहता है कि ये पढ़ा जाने लायक है, लेकिन बहुत ही जरूरी और खास रहा है वो हम सब लोगों के हिस्से में. मैं
कुछ नाम लूंगा जो शायद आपकी घंटियां बजाए। गुलशन नंदा, इब्ने सफी, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश काम्बोज। आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आप सोचेंगे तो व्हीलर के किसी भी बुक स्टॉल पे रेलवे स्टेशन में या स्टेट बस के किसी भी बस अड्डे पे जो पॉकेट बुक्स बिका करती थी हिंदी में, वो इन सभी लोगों की थी। और ये वैसे लेखक थे जिन्होंने करोड़ों देशवासियों को अपने साहित्य से, अपने लेखन से जोड़े रखा और मनोरंजन का एक अद्भुत साधन दिया था। उसी पल्प फिक्शन को या लुगदी साहित्य के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ उजाला देखने से बात नहीं बनती, काला भी जो है उसको जोड़ना पड़ता है, तभी इंद्रधनुष पूरा होता है। किताबों का है कि किताबों में न सिर्फ शब्द लिखे जाते हैं बल्कि आशा और उम्मीद का ताना बाना बुना जाता है। तो जो हम यथार्थ में जीते हैं, जो हम उच्चतर साहित्य पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा यथार्थ होता है या यथार्थ से प्रेरित होता है। लेकिन ये जो हमारा पल्प फिक्शन का साहित्य है वो हमारे यथार्थ से परे का होता है और वो जीवन का ताना बाना बुनता है, हमारे को वो देता है जिसकी जरूरत रहती है, जिससे जिंदगी आगे चलती रही है। मैं इसी बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा अपने कुछ सवालों से अपने लर्नेड पैनल के साथ। मैं एक बार आपसे पुरजोर गुजारिश करूंगा कि हम परिचय एक बार मैं दूं तो आप सब लोगों को तालियों से स्वागत करें। और सबसे पहले हमारे सबसे बाएं बैठे हैं डॉक्टर संजय सिंह या शिशिर सोमवंशी, साहित्य का, हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम, और इन्होंने भी इस पल्प साहित्य को हर एक उस बच्चे की तरह उत्तर प्रदेश में जिया है, पढ़ा है। उसके बगल में आप डॉक्टर केडी सिंह हैं, उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एक सेलिब्रेटेड हिंदी ऑथर हैं, दर्जनों किताबों के साथ और लेखों के साथ, वो भी इसमें अपना विचार रखेंगे। और सबसे नजदीक मेरे बैठे हमारे एक वर्दीधारी लेखक हैं सत्यार जी, जिनकी साहित्य में पकड़ उतनी ही मजबूत है जितना इनकी वर्दी पे इनकी पकड़ है। और जरूरी इसलिए था इस पैनल को एक वर्दीधारी के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि पल्प फिक्शन में कहानी शुरू ही रहस्य और रोमांच से होती है और क्राइम के साथ ही आगे बढ़ती है। तो क्राइम को जानने के लिए क्राइम का एक सिपाही सलार अगर साथ होगा तो हम सब लोगों को रुचिकर बनाएगा। सबसे पहले शुरू करता हूं आपसे शिशिर जी, क्या लगता है आपको कि पल्प फिक्शन का उद्भव जो हुआ था और क्या कारण था कि इसका प्रचार प्रसार 60 से 80 और 90 के दशक में इतना ज़्यादा हो गया था कि अन्य लेखकों की 100-200 प्रतियां नहीं बिकती थीं और इनकी किताबें जब रिलीज होती थीं तो ये हजारों में बिक जाया करती थीं? देखिए, किसी भी लेखन का उद्भव हमेशा आवश्यकता से होता। अगर लुगदी साहित्य की या जो रोमांच उसमें था, जो रहस्य था, जो कल्पनाओं की उड़ान थी, जैसे आपने कहा, यथार्थ का साहित्य या जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाला साहित्य था, उसको तो वो लोग पढ़ते हैं जिनकी साहित्य की समझ गहरी हो चुकी होती है। कहीं ना कहीं समाज के भीतर पढ़े जाने की आवश्यकता होती है और तुरंत फुरत हमें वो सामग्री उपलब्ध होनी होती है जिस सामग्री को हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जो सुग्राह्य होती है। तो लुगदी साहित्य हम भले ही कह सकते हैं, लेकिन जिस मात्रा में ये साहित्य लिखा गया, मसलन हम वेद प्रकाश शर्मा साहब का ही उदाहरण लें। अगर कोई व्यक्ति अपने 40 साल के लेखकीय जीवन में 176 उपन्यास लिख लेता है, तो वो 176 उपन्यासों को पढ़ने वाला या उसकी पहुंच और इतने कम कीमत पर वो साहित्य या वो लेखन जनता के बीच में उपलब्ध होता है। कैदी नंबर 100 उनकी 100वीं किताब थी और पहली बार किसी लुगदी साहित्य या पल्प फिक्शन जो भारत के भीतर जो हिंदी में था, उसका दाम 100 रुपये रखा गया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि 100 रुपये तक वो लेखक पहुंच पाता है 100 किताबें लिखने के बाद। तो वो जो ग्रहण करने के लिए जो इकोनॉमी की बात है, जो उसकी कीमत है, उस सब के लिए सुलभ थी। और सुलभ होना साहित्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। जहाँ तक आप मुझे कहेंगे कि मेरी माँ ने जब पिता से आग्रह करके कैदी नंबर 100 खरीदा तो उनको वो महंगा लगा। 100 रुपये का उपन्यास पहली बार महंगा लगा। तो ऐसी चीज़ें जो ग्रहण करने के लिए एक लेखक को जीवन भर जाना पड़ता है और एक बहुत बड़ा वर्क पड़ता है। मैं विगत 2-3 साल पहले का उदाहरण दूं। एक बहुत ही
पढ़ने वाली मेरे मित्र की माँ, वो 15-20 वर्षों से परेशान है कि अवेलर के जो स्टॉल होते हैं बुक स्टॉल। या जो हमारे बस स्टैंड या रेलवे पे होते हैं, उन पे राजहंस, मनोज या इस तरह के उपन्यास नहीं मिलते। तो मैं रांची से कोलकाता जा रहा था, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मैं उनके टेस्ट को देखते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए शिवानी के कुछ उपन्यास ले आऊँगा, क्योंकि वो बहुत पढ़ती हैं। तो उन्होंने मुझसे आग्रह कहा, आप शिवानी के मत लाइएगा, अगर सुरेंद्र मोहन पाठक का कहीं से कुछ संग्रह मिल जाए। तो ये पहुंच थी लुगदी साहित्य की, और इसी लुगदी साहित्य ने कम से कम मुझे मेरे पारिवारिक परिवेश में मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में ये साहित्य घूमता रहा। और ये उपन्यास जो लेखक के, चाहे रानू के हों चाहे गुलशन नंदा के हों, ये सारे उपन्यास बहुत आसानी से मिल जाते थे। एक तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, और सब जगह उपलब्ध होने के कारण हम लोगों का भी पढ़ने के प्रति एक जागृति उत्पन्न हुई। और वो जागृति इतनी आगे ले गई कि अगर सत्यार जी भी एग्री करेंगे और सिंह साहब भी एग्री करेंगे, और आपने भी काफ़ी लिखा कि कहीं ना कहीं अगर हमने कोई पहली चीज़ पढ़ी होगी तो वो पल्प फिक्शन होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि पल्प फिक्शन में जो रोमांच था, पल्प फिक्शन में जो कल्पना दी, उसी कल्पना ने हमको लेखक बना दिया। तो पल्प फिक्शन का योगदान हमको स्वीकार करना होगा। हमको ये भी देखना होगा कि अगर वर्दी वाला गुंडा उपन्यास, मुझे बता दीजिए, हम लोग भी बहुत मंच पर लेखन की बात करते हैं, लिखते हैं, हमारी जो उपन्यास की पहला संस्करण निकलता है, कितनी प्रतियां निकलती हैं जी? कितनी, बहुत सारे लेखक हैं, प्रकाशित लेखक, उनकी 200 से 300 प्रतियां निकलती हैं। अगर वर्दी वाला गुंडा की 6 करोड़ प्रतियां बिकी हैं इसी देश में, किस हिंदी के साहित्य की बिकी है मुझे बताइए? गुनाहों के देवता के अतिरिक्त ऐसा बिकना, या मधुशाला के अतिरिक्त बिकना संभव नहीं। तो ये एक पहुंच बहुत तगड़ी थी, और इसी के चलते लोगों ने देखा कि इन लेखकों का योगदान मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि पल्प फिक्शन के जरिए एक पढ़ने की भावना जागृत होती है, और पढ़ने की भावना जागृत होती है तो इंसान पढ़ता चला जाता है, और फिर समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभव के साथ हमें समझ में आता है कि कौन सा साहित्य या कौन सा लिखा गया ग्रंथ पहले से बेहतर है, या मैं कविता के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या आलोचना के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तो बहुत सी विधाओं का रास्ता खोलता है ये पल्प फिक्शन। और पल्प फिक्शन केवल हमारे यहाँ जो 60 के दशक से लेकर और विशेषतः जो 80 के अंत तक, 90 तक भी काफ़ी चला, उसके बाद सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आके पल्प फिक्शन को मार दिया गया, हिंदी में कम से कम। और आप ये भी मानेंगे कि सॉरी टू से बहुत सारे हिंदी के लिखने वाले भारतीय लेखकों ने जो अंग्रेजी में लिखना शुरू किया है, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अधिकांश जो रचनाएं जो आईटी या ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, वो देयर इज़ नथिंग बट पल्प फिक्शन ओनली। बिल्कुल। तो ये ताकत है, आज वो बिक रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पे विचार और अधिक रखें। तो मुझे लगता है कम से कम मेरी साहित्यिक यात्रा में और बहुत सारे लोगों की जो साहित्यिक जागरूकता में वृद्धि करने का जो भाव पल्प फिक्शन ने दिया है, वो अपने आप में अतुलनीय है। रजनीश, धन्यवाद। भाषा से जो पहला प्रेम अगर हुआ है किसी को भी, तो वो पल्प से हुआ है। अगर आप बचपन में याद करिए तो राजन इकबाल सीरीज निकला करती थी, वो भी पॉकेट बुक था जो बच्चों के लिए होता था और बच्चे पढ़ा करते थे। तो भाषा का प्रेम, साहित्य के प्रति जो रुझान, या मैं यूं कहूं, कल से हम शब्दों की बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि शब्दों से खेलने की जो चाहत पैदा हुई, वो पल्प फिक्शन से ही हुई, और हर आदमी को हुई, हर जगह हुई। तो ये बड़ा ही एक सार्थक पहलू है पल्प फिक्शन का। आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। केडी सिंह साहब से पूछूंगा कि अगर आपको लगता है कि पल्प फिक्शन को और गंभीर साहित्यिक ध्यान मिलना चाहिए, या इसका असल मूल सिर्फ मनोरंजन करने का पक्ष है? धन्यवाद रजनीश जी। बात पल्प फिक्शन की चल रही है, और जैसा कि अभी सर ने बताया, हम लोगों की साहित्यिक अभिरुचि की शुरुआत ही वहीं से हुई है, जहाँ से आप कह रहे हैं राजन इकबाल से,
या चाचा चौधरी से या इसी तरह के दूसरे, जो हमारे बचपन का साहित्य ही वही था। मेरा अपना सोचना है रजनीश जी कि साहित्य के साथ आप कोई भी विशेषण लगा लीजिए, सस्ता साहित्य, आज का साहित्य, कल का साहित्य, लुगदी साहित्य, साहित्य के आगे कुछ लगाइए या पीछे कुछ लगाइए, साहित्य साहित्य ही होता है। क्योंकि बहुत एक फेमस चीज़ जो आपने हमेशा शुरू हुई, हम लोगों ने तो शुरुआती तौर पर जब निबंध पढ़ना शुरू किया तब भी पहला निबंध हम लोगों ने पढ़ा, साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल सही। तो साहित्य आपको वही मिलेगा जो आपका समाज है, जिस वक्त के समाज में आप जी रहे हैं। 60 से 80 के दशक में, जैसा कि आपने बताया, सस्ता साहित्य या लुगदी साहित्य, मैं उससे और पहले जाता हूँ। आपने अगर नाम सुना होगा चंद्रकांता संतति, देवकीनंद खत्री लिखा था, देवकीनंद खत्री। पल फिक्शन ही था, सस्ता साहित्य ही था, लोकप्रिय हुआ और इतना लोकप्रिय हुआ कि कहते हैं उसको पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। बिल्कुल सही। तो ऐसा साहित्य, उसको आप सस्ता साहित्य या लुगदी साहित्य कहकर के खारिज नहीं कर सकते। दूसरा रजनीश जी, मैं ये कहूँगा, जो मेरा अपना विचार है कि मैं इस प्रकार के साहित्यिक विकास को जैव विकास के क्रम की तरह देखता हूँ। आदमी की जो नस्ल जो पैदा हुई, वो पृथ्वी पे जैसे जीवन की शुरुआत हुई तो एक कोशिकीय प्राणी से, अमीबा से, फिर इसके बाद सांप, मगरमच्छ वगैरह वगैरह, पक्षी और बंदर, फिर आदमी। तो आदमी बन जाने के बाद हम बंदर के उस विकास की प्रक्रिया को उपेक्षित नहीं कर सकते, उसको भूल नहीं सकते। आखिरकार हम वहीं से आए हैं और हमारे आदमी हो जाने के बाद भी ये बंदर या चिड़िया या पक्षी या सांप गायब नहीं हो गए, ये हैं। बिल्कुल सही। हम उसी क्रम से गुजर करके आए हैं। हम आज अगर दावा करते हैं कि हम बौद्धिक साहित्य लिखते हैं, तो हम ये भी दावा करते हैं कि हम वो साहित्य पढ़ करके आए। हमारे लिए दोनों का जीवन महत्व है। जहां तक बात नैतिकता की आपने कही, नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न तो जैसा मैंने बताया समाज का आईना है ना। शहादत हसन मंटो को अनैतिक साहित्यकार कहा गया जी। आज हम जानते हैं कि उनकी कहानियों का कितना इम्पैक्ट है समाज में। एक तरह से मुझे लगता है कि रियलिस्टिक, यथार्थवादी चीजें, या जैसे मैं काशी का 80 की बात करूं, बड़ी गाली गलौज है उसमें। जो कथित साहित्यकार है, बौद्धिक साहित्यकार, वो कह सकते हैं कि ये तो गाली गलौज का उपन्यास है, गाली गलौज की भाषा है। इसमें राही मासूम रजा का मुझे एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे याद आता है। किसी ने उनसे कहा कि आप इसमें गाली गलौज भरते हैं, तो आप ऐसा करिए, इसको डॉट डॉट कर दिया करिए, जहां आपको गाली देना है आपके पात्र को, डॉट डॉट कर दीजिए उस जगह। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं डॉट डॉट लिखूंगा तो आप अपनी गाली भरेंगे, आपके जहन में तो कुछ गाली आएगी, वो आप अपनी भरेंगे। मैं चाहता हूं मेरा पात्र जहां का है, जैसा है, वो अपनी भाषा में गाली दे, मैं उसकी भाषा में गाली सुनना चाहता हूं, मैं आपकी भाषा को उसमें समाहित नहीं करना चाहता। केडी जी, एक इसमें आपको बीच में रोका, सॉरी। आमतौर पे ये देखा गया है कि किसी भी चीज़ की सफलता के लिए लोकप्रियता मायने रखता है, कि कुछ भी अगर फिल्म अच्छी है तो लोकप्रिय है, इतना दर्शक आ गए, या खेल अच्छा है तो उसमें ये खिलाड़ी अच्छा है बिकॉज उसकी लोकप्रियता बहुत अच्छी हो गई है। पर लुगदी साहित्य में या पल्प फिक्शन में इकलौता विरोधाभास मिलता है कि लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, बिक रही है सबसे ज्यादा, रेवेन्यू जिसको कहते हैं या पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन स्तर में उसको कहते हैं कि निम्न स्तरीय साहित्य है। इस पे आपके विचार जानना जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि हमने बताया ना कि विश्लेषण के हमारे अपने खांचे हैं। होता क्या है, जिसको आप ये सस्ता साहित्य या साहित्य से इतर चीजें कहते हैं, मैं उसको समानांतर साहित्य कहता हूं। जैसे समानांतर सिनेमा, बिल्कुल सही। जो सिनेमा देखा जाता है मिथुन चक्रवर्ती का, या जिसमें अश्लील गाने भी होते हैं, वो 90% जनता सिनेमा हॉल्स में वही सिनेमा देखती है। इसके बावजूद अर्थ जैसी फिल्मों का, या नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी की फिल्मों का, श्याम बेनेगल की फिल्मों का एक अलग स्तर है, उनको हम आर्ट मूवी कहते हैं। दोनों की जगह है। सवाल यह है कि आप किस मस्तिष्क से, किस सोच के साथ आप उस सिनेमा को देखना चाहेंगे। तो जो एक बड़ा वर्ग है, जहां से आपने शुरू किया था, मैं वहीं खत्म कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग था। आप कभी भी साहित्य को मनोरंजन से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। साहित्य पढ़ना कभी किसी को डॉक्टर ने नहीं बताया होता जी। आप अपनी स्वेच्छा से पढ़ते हैं, अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ते हैं। तो अगर मनोरंजन है, कथा वस्तु है, रहस्य है, रोमांच है, वो हमारी मनोभावनाएं हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होती हैं, सस्पेंस, थ्रिलर, तो उससे जब होता है तो हमको वो चीजें आनंद देती हैं। यही चीज मुझे लगता है कि सिनेमा में भी है, जिसको हम सस्ता सिनेमा कहते हैं, वो भी यही चीज करती है, हमारे मस्तिष्क में ऐसे ही असर डालती है, और ज्यादा लोग उसको देखते हैं, ज्यादा लोकप्रिय होता है। जी। केडी सिंह साहब कह रहे हैं कि फतांसी या फैंटेसी जिसको हम कहते हैं, मनोरंजन का एक बड़ा ही उम्दा साधन है,
और पल्प फिक्शन जो रहा है फैंटेसी बेस रहा है, जो हमारे को आनंदित करता रहा है, इसलिए लोग पढ़ते रहे। एक और बात जो निकल कर सामने आ रही है कि साहित्य एक पैरेलल समानांतर पटरी की तरह है, जो आप बोल रहे हैं। एक तरफ हम उच्चतर साहित्य को लेके जा रहे हैं, अगर हम उनको उच्चतर कह रहे हैं या मान रहे हैं, और दूसरी तरफ समानांतर हमारी लाइन चल रही है जो फिक्शन की है, जो लोगों को जोड़ के भाषा के साथ आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न लेता हूं सत्यार्थ जी आपसे। पल्प फिक्शन में दो चीज़ें बड़ी आम हैं, रहस्य रोमांच है, क्राइम है, और थोड़ा सा रेसी पुट दिया जाता है उसको, जिसको आप कहें कि लोग एक तरह से समझिए कि कुछ आपको उत्तेजक कोशिश की जाती है शब्दों के माध्यम से, ताकि वो जिजीविषा बनी रहे या पढ़ने का मतलब चलता रहे। तो अक्सर अपराध, हिंसा और नैतिक भ्रम जैसे विषय होते हैं पल्प फिक्शन में। सत्या जी, आपको क्या लगता है कि ये विषय आज के पाठकों से भी जुड़े हुए हैं और आज भी क्यों प्रासंगिक हो जाते हैं, रहस्य, रोमांच और क्राइम, हमारे पल्प फिक्शन या अन्य और फिक्शंस में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अपराध, हिंसा और नैतिक भ्रम, और बड़ा रोचक है कि दोस्तोयेवस्की की किताब क्राइम एंड पनिशमेंट कोई पल्प फिक्शन नहीं है, लेकिन अपराध, हिंसा और नैतिक भ्रम पर बात करती है। उसे पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि इसमें अपराध भी है, घटनाएं होती हैं, हिंसा होती है, और हम एक मोरल प्रेडिकमेंट में आते हैं। जब हम ये कहते हैं कि पल्प फिक्शन, थोड़ा इसको ब्रॉडर करते हुए मैं कहूँ लोक साहित्य, लोकप्रिय साहित्य, मैं आपको सांस्थानिक रूप से बता रहा हूँ। सांस्थानिक प्रयास 2023 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लोकप्रिय साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, और रखा किसको जाता है? इब्न सफ़ी को, वेद प्रकाश शर्मा को, कृष्णचंद्र जी को, वेद प्रकाश शर्मा को, और गुलशन नंदा जी को, और सुरेंद्र मोहन पाठक को, और राधे श्याम कथावाचक जिन्होंने रामायण के लोक मंचन किए, उसके लिए जो रामायण लिखा था। तो ये जो वैरायटी है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, हमारी समस्या शुरू होती है बाइनरी क्रिएट करने से। हमारी समस्या शुरू होती है जीरो सम गेम क्रिएट करने से, जहां हम कहते हैं कि ये होगा तो ये नहीं होगा। हम हमेशा इसी वेशभूषा में नहीं रहते, हम कभी लोअर लूजर में भी रहते हैं। बिल्कुल सही। हम हर समय को अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से जीते हैं। वो हमारा विखंडन नहीं है, वो हमारी समग्रता और प्राइवेसी है, वो हमारी इंटीग्रिटी है। मैं अगर यहाँ लूजर में या लोअर में आऊँ तो आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और मैं इस वेशभूषा में आऊँ तो आप अप्रिशिएट करेंगे। ये कोई छल नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, यही कायदा है, ये तरीका है जी। तो हम दोनों साहित्य को, चाहे वो क्राइम एंड पनिशमेंट हो, रस्किन बॉन्ड ने कहानियाँ लिखी, 7 खून माफ उनकी कहानी पर है जी, तो वो साहित्य की दृष्टि से कतई नीचे नहीं है। मुद्दा यह है कि साहित्य एक बड़े सत्य का उद्घाटन करता है मनोरंजन के साथ साथ। आप फिल्मी गाने में और कथक में कोई एक डिफरेंस है, एंजॉय आप दोनों करते हैं। आप किस समय क्या एंजॉय कर रहे हैं, ये मसला। दूसरी बात जो आपने कही, 1980 के बाद से, 1980 के दौर में हमारी हिंदी में जो लोकप्रिय साहित्य था, अन्य भाषाओं में क्या हुआ इस बारे में अभी हमारा ध्यान नहीं है, हम हिंदी में केवल बात कर रहे हैं। केरल में क्या लिखा गया, तमिलनाडु में कौन सा पल्प फिक्शन लिखा गया, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन लिखा गया। हाँ लिखा गया, हर जगह, हर भाषा में पल्प फिक्शन रहा है। 80 के दौर में जब हमारे पास मनोरंजन के साधनों का वैसा अभाव था, जब टीवी आया, ओटीटी आ गया, अब आप सीरीज़ देखते हैं, मोबाइल में आपके पास ओटीटी है, तो आपको आज के तारीख में पल्प फिक्शन में सुरेंद्र मोहन पाठक के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुरेंद्र मोहन पाठक पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, तो अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन आपको कोई दूसरा उभरता हुआ नाम नहीं मिलेगा। हाँ, इस दौर में नई हिंदी के नाम से दिव्य प्रकाश दुबे, सत्याव्यास, कुछ अंग्रेजी में चेतन भगत, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, जो ये चाहते हैं कि जो ग्रेट ट्रेडिशन है और जो लिटिल ट्रेडिशन है, जो लोक है और शास्त्र है, उसके बीच की दूरी कम हो। इस दूरी को कम करने के लिए हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जानना ज़रूरी है। एक चीज़ होती है टिटिलेशन, एक चीज़ होती है आनंद, जैसे हम रस कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं।
आपकी आनंद और अभिरुचि का स्तर क्या है, ये निर्धारित करेगा कि आप मनोरंजन का कौन सा साधन चुनेंगे। हम गांव में जाते हैं तो नाच भी होते हैं, हम उनमें बैठना पसंद नहीं करते। तो हमारा मकसद क्या है? क्या हम उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं जिन फिल्मों में ऐसी चीज़ें हैं जो हम परिवार के साथ नहीं देखना चाहते? तो हमारा मुद्दा ये है कि हम साहित्य से अपेक्षा क्या करते हैं। अगर हम गालिब के शेर से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमें रोमांचित कर दे और सत्य का उद्घाटन भी करे और उसमें फ़लसफ़ा भी हो, अगर हमें इतनी सारी चीज़ें एक प्लेट पर चाहिए तो हमें ऊंचे साहित्य की तरफ देखना पड़ेगा। अगर हम उस वक्त तात्कालिक एक आनंद चाहते हैं, तात्कालिक एक टिटिलेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि टाइम पास हो हमारा जिसमें हम कुछ पढ़ते लिखते रहें, तो ये हम जिसको हम कहते हैं कि पल्प फिक्शन या जिसको हम साहित्य कहते हैं। देखिए, पल्प फिक्शन वर्ड भी 1950 के बीच जो उभरा, उसके बाद वहाँ भी पल्प फिक्शन नहीं, बेस्ट सेलर में आ गया है। बेस्ट सेलर में आ गया, उसका ये नाम बदलना पाश्चात्य- पड़ा हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कागज इतना सस्ता नहीं रह गया, बिल्कुल। जिस सस्ते कागज के चलते उसका नाम पल्प फिक्शन पड़ा था। तो मुद्दा ये किसी बाइनरी का नहीं है, मुद्दा अपने चुनाव का है, मुद्दा आपकी अभिरुचि का है, मुद्दा है कि हम साहित्य से अपेक्षा क्या कर रहे हैं। अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो हम समाज को एक मुहावरे के तौर पे क्या डेविड धवन के रास्ते ले जाना चाहते हैं या मणिरत्नम के रास्ते ले जाना चाहते हैं। तो ये हमें चुनना है और ये हमारा चुनाव सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। लोकप्रियता एक पैमाना हो सकती है। एक किसी पुराने लेखक ने कहा था कि जब मैं रविंद्रनाथ को पढ़ता हूँ तो 75% सोचता हूँ, 25% रोता हूँ। क्या बात। जब मैं शरद चंद्र को पढ़ता हूँ तो 75% रोता हूँ और 25% सोचता हूँ। जब मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो 50% सोचता हूँ और 50% रोता हूँ। मुद्दा है कि हम आज जब हम कहें कि पल्प फिक्शन ही साहित्य होना चाहिए, लोकप्रियता ही कसौटी होनी चाहिए, तो क्या मानसरोवर जैसे कहानियों को, प्रेमचंद की कहानियों को या रेणु की कहानियों को हम ये कह रहे हैं कि वो लोगों तक नहीं पहुंचती? पहुंचती हैं। मुद्दा सेल्स के आंकड़े नहीं होने चाहिए, मुद्दा उसका कंटेंट होना चाहिए और मुद्दा पब्लिक से उसका कनेक्ट होना चाहिए और वो किसी हमारी उस वक्त की आवश्यकता को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये होना चाहिए। बहुत गंभीर बातें बता दी आपने। संक्षेप में शुरुआत मैंने क्राइम से की थी, तो क्राइम से सुधार तक हम आ गए। धन्यवाद सत्यार जी, और ये एक अच्छा सकारात्मक पहलू रहा इसका। मैं वापस केडी सिंह साहब के पास जाऊंगा और मैं, चूंकि रोमांच और क्राइम यही चीज़ें हैं जो बांध सकती हैं आपको 400 पेज में और 300 पेज में, ताकि आप एक सिटिंग में 4 से 6 घंटे में ख़त्म करें। तो एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि जैसे पल्प फिक्शन की परंपरा रही है कि तेज तर्रार कथाएं, अतिरंजित पात, सनसनीखेजता जो उसमें रहता है, आप इसको कैसे देखते हैं दूसरी फिक्शन के, नॉर्मल साहित्य के उससे? क्योंकि वहाँ भी ये बातें मिलती हैं। हाँ, अभी भी जो नई फिक्शन की किताबें आ रही हैं उसमें ये चीज़ें रहती हैं, तो वो क्यों अलग है? यही बात दूसरी जगह सही है, इस जगह नहीं है। ये एक आपसे थोड़ा विचार जानना नहीं, चाहूँ। वही बहुत टिपिकल चीज़ आपने कही। दरअसल जिस तरह से मानव का मस्तिष्क जितना जटिल और उलझा हुआ होता है ना, उस तरह से उसकी ग्राह्यता भी वैसी ही होती है। इसीलिए दो तरह के वर्ग भी हैं और एक वर्ग ऐसा भी है जो दोनों में अपनी, जैसे उभयचर समझ लीजिए उसे आप। एक आदमी केवल पानी में, एक पक्षी पानी में रह सकता है, एक हवा में उड़ सकता है, लेकिन कुछ उभयचर होते हैं जो जमीन पे और जल पे रह सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा आपने बताया था कि एक बड़ा वर्ग है जो अपने आवेगों से संचालित होता है, जी, तो वो साहित्य की उस धरातल पे या उस सतह तक पहुंचना नहीं चाहता, या शायद पहुंचने की कुव्वत नहीं है, या शायद समय नहीं है, समझ नहीं है। सही। तो फिर वो शुरुआत, लेकिन कम से कम पढ़ने की शुरुआत उसकी इससे होती है। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है बुंदेलखंड में अक्सर जो है 40 या 50-60 पैसे की किताब मिलती थी, आल खंड, मल्हनी का ब्याह, आला का ये, उदल का वो, 40-50 पैसे की मिलती थी। वो बहुत लोग पढ़ते थे। मुझे लगता है कि गांव में किसी घर में चला जाऊं, उस घर में अगर एक भी पढ़ा लिखा आदमी है तो वो 2-4 किताबें आले पे रखी होती थी। बिल्कुल। आल्हे का आल्हा या कुछ और भी कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, वो सब सस्ता साहित्य, लुगदी साहित्य में ही आता था। उसको हम लोग साहित्य की कसौटी में साहित्य नहीं मानते थे। लेकिन सच ये है कि उसी साहित्य ने
बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक समय में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य भी पूरी मतलब उत्तर भारत में कोई ऐसा नहीं आदमी होगा जिसके यहाँ रामचरितमानस ना रही हो। जी। मैं यहाँ बात सस्ते की बात कर रहा हूँ। समझ की जहाँ तक बात है, उसी रामचरितमानस को पढ़ने वाले लाखों लोग थे, समझने वाले कुछ लोग थे, उनको हम मानस मर्मज्ञ कहते थे या रामायणी कहते थे। उसी साहित्य को पढ़ सब कोई रहा है, अपने आवेगों से पढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी मीमांसा कर रहे हैं तो वो बौद्धिक हैं। साहित्य में भी ऑलमोस्ट यही धाराएं हैं। जी, बहुत अच्छी बात। पुरानी नॉवेलों पे गुलशन नंदा के और उनमें कई पिक्चरें भी बनी हैं। सिनेमा को कलात्मक सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा में बांट दिया गया। इस हमारे साहित्य को भी एक मेन स्ट्रीम साहित्य और लुगदी साहित्य में बांट दिया गया। मैं अभी शिशिर जी से एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि अनायास सबके दिमाग में आता है मनोरंजन का माध्यम बदल गया है। ओटीटी कंटेंट, आपने चर्चा की, ओटीटी कंटेंट आ गया। आपको लगता है ऐसा कि ये जो हमारे पल्प फिक्शन की किताब थी, ये आज के ओटीटी कंटेंट के जनक हैं, या ओटीटी कंटेंट के पीछे जो कहानी है या पटकथा है वो सारी की सारी लगभग यहीं से मिलती हैं, क्योंकि जिस भाषा शैली का, जिस अंदाज का इसमें इस्तेमाल होता है? शिशिर जी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक आवश्यकता रहती है किसी भी चीज़ की, और कुछ भी नहीं हुआ है जो एक वैक्यूम आया। शुरुआत में टीवी पे जो चीज़ें प्रसारित की गई, वो रामायण महाभारत के जो सीरियल्स थे या मालगुडी डेज जैसे जो कथानक थे उनको लेके चले, लेकिन समय के साथ साथ ऐसी चीज़ें हुई कि एक प्रतिस्पर्धा फिल्मों से हमेशा टीवी की हुई। और टीवी को अगर कहीं फिल्म के स्तर तक लोकप्रिय होना था और वहाँ तक पहुँचना था, तो फिल्म जैसी लोकप्रियता के लिए उसमें वो तत्व मनोरंजन के आने थे। और मनोरंजन के तत्व कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि जो चीज़ पहले लोकप्रिय थी, जो ज़्यादा पढ़ी जाती थी, ज़्यादा लोगों में चर्चा होती थी। आप प्रेमचंद के कितने उपन्यासों में फिल्म बनी है आप गिन सकते हैं उंगलियों पर। बिल्कुल। लेकिन गुलशन नंदा साहब के कितने उपन्यासों पे फिल्में बनी हैं, वो उनसे बहुत आगे बनी हुई हैं। बिल्कुल। तो हम किसी के योगदान को आंकना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। आजकल कमर्शलाइजेशन का जोर है और जो बहुत फास्ट मीडियम है। हम आज टर्किश सिनेमा भी देख रहे हैं, कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं, स्पेनिश सिनेमा भी देख रहे हैं। डबिंग की फैसिलिटीज़ इतनी अधिक हो गई है। तो ये पल्प फिक्शन वाला जो लोकप्रिय क्षेत्र है, केवल वैक्यूम को फिलअप किया गया है। और मैंने पहले ये भी कहा कि बहुत सारे जो हिंदी या हिंदुस्तानी लेखकों ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, उसमें आप देखेंगे जो शुरुआत होती है कि हर 5वें पन्ने पे या हर 10वें पन्ने पर, माफ़ करेंगे वो लेखक मुझे, उसमें एक जो है शयनकक्ष से शुरू होता है या कहीं पे ख़त्म होता है। तो वो चीज़ें भरी जा रही हैं। लेकिन ओटीटी में भी सुधार आएगा। वहाँ पर धीरे धीरे कोई भी चीज़ लगातार नहीं चल सकती। फिल्मों में समीर साहब बैठे हुए हैं, एक समय होता था कि आइटम सॉन्ग हर दूसरी मूवी में होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ अब होते हैं क्या? तो अपने आप मीडियम सुधारता है, समाज सुधारता है। हम लोगों को बहुत इस बहस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा साहित्य है या क्या नहीं है। मेरा अपना टेक यही। समय बदलाव जी स्वतः ला देता है। बहुत सही कहा आपने। गाने जो थे जो पहले जी, आपकी अनुमति से मैं शिशिर जी के साथ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जो आपने बताया ओटीटी में ना, ओटीटी में भी एक्चुअल में वही द्वंद्व है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, पल्प और साहित्य का। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो देखा पंचायत। मुझे लगा मैं फणीश्वर नाथ रेणुका की कहानी, आंचलिक कहानी पढ़ रहा हूँ। तो एक ऐतिहासिक वो देखा मैंने, सीरियल किसी में था वो सियासत, अच्छा बन पड़ा है। और उसी में कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं खोलता हूँ और मुश्किल से 1 मिनट लगता है कि ये नहीं झेल पाएंगे। तो पैरेलल धारा वहाँ भी वही चल रही, ओटीटी में भी अच्छे और बुरे की, पल्प और साहित्य की, वो भी चल रही वहाँ पर। समय की बाध्यता है और हम लोग इसको अनवरत रख सकते हैं, पर चलने से पहले अपने पैनलिस्ट सत्यार्थ जी से एक बड़ा ही सीधा सपाट सवाल करता हूँ कि ये पल्प फिक्शन से, अगर आपको इस बारे में कुछ अंदाज है तो आप ज़रूर शेयर करें,
कि कितने अपराध होते थे और ओटीटी कंटेंट देख के अभी कितने अपराध हो रहे हैं, तो पता चले कि साहित्य तब भी सुधारवादी था या ओटीटी कंटेंट नहीं है। मुझे सत्यार्थ जी। पता नहीं आपको ध्यान हो, दृश्यम फिल्म में आखिर में किताब में क्लाइमेक्स रची जाती है पहले जी जी जी, बचने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, ये सवाल और वहीं से। उस फिर कोर्ट में ये बताया जाता है कि साहब हमने तो किताब पहले छपा दी थी। हाँ जी, तो किताब और फिल्म और क्राइम का रिश्ता तो जो है आपस में है, लेकिन क्राइम की दृष्टि से जो पेटी क्राइम्स हैं, छोटे क्राइम्स हैं, वो मोस्टली वैसे लोग करते हैं जो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनके पास पढ़ने लिखने के साधन हैं या नहीं, ये तो अलग मसला है, उसका एनालिसिस तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये कहेंगे कि हाँ, वो किताबें पढ़ के कम, फिल्में देख के ज़रूर बताते हैं। ऐसे एक दो बार ऐसे अपराधी ज़रूर मिले हैं जिन्होंने बताया कि मैंने फला फिल्म में ये किया था। और लास्ट में मैं एक मजाक के तौर पे, एक अपराधी ने कहा कि आप मेरे से जो पूछताछ कर रहे हैं और जो ये सब आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान में ज़रूर छपवाना, क्योंकि हिंदुस्तान अखबार ही मेरी प्रेमिका के पास जाता है। बहुत अच्छे। नव उदारवाद के इस समय में जिससे हम हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं, भारत में गुजर रहे हैं, जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, समय आज की डेट में सर्वोपरि हो गया है। किताबें तब पढ़ी जाती थीं जब रेल यात्राएं होती थीं, तो 12 घंटे 18 घंटे। आज जहाज़ की यात्रा है तो लोग पढ़ते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये साहित्य के प्रति प्रेम वापस लौटेगा। और उसका एक बहुत ही मौजूद उदाहरण है कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी को हार्पर कॉलिंस ने साइन किया हुआ है और उनकी किताब अभी छपने जा रही है। शायद वो इस वजह से कि अगर बड़े पब्लिशर छापेंगे तो वो पल्प फिक्शन के दिन बहुर जाएंगे। हम इसी आशा के साथ साहित्य के इस विधा को भी आज चर्चा में समाहित किया। अपने पैनल का धन्यवाद देता हूं। और चलने से पहले कुछ क्षण है मेरे पास, आप सुधीजन जो यहाँ बैठे हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं स्वागत करूँगा, आप पूछ सकते हैं। शायद कार्यक्रम में मुझे लग रहा है लोग अगले कार्यक्रम के लिए भी रुचि। जी जी जी, स्वागत है। मैं आ रही मैम, बोलिए। कल से मैं हिंदी साहित्य के 2-3 सेशंस मैंने अटेंड किए हैं और कल से ये सवाल मेरे दिमाग में था कि मैं पूछूं, और आज डिस्कशन भी उसी बारे में हो रहा है कि आपने मेंशन किया गुलशन नंदा के नॉवेल्स पे जो फिल्में बन रही थी काफ़ी प्रोग्रेसिव थी जी, जैसे कि कट्टी पतंग, जी। जिसमें विधवा विवाह के बारे में बात किया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी ओटीटी के बारे में बोला, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो ओटीटी में जो चीज़ें आ रही हैं, जो कंटेंट आ रहा है, उसकी वजह से बुक रीडिंग पे, उसका पढ़ने पे उसका कितना असर हो रहा है? जी। क्या मतलब ओटीटी का कंटेंट बुक रीडिंग को के ऊपर हावी हो रहा है? जी, समझ गया। आपका कहना है कि पढ़ाई शायद कम हो रही है, कम हो लोग रही देख है ज्यादा रहे क्योंकि हैं। रीडिंग टाइम थोड़ा कम हो गया है। जी, लोगों जी। को टाइम मिलता है तो सोचते हैं कि हम देख लें, इससे मतलब पढ़ने में ज्यादा पढ़ने टाइम से। जाता है, देखने में विजुअल इफेक्ट्स में ज्यादा मजा आता है। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा और ये मुद्दा होना भी चाहिए। अभी कोई भी चीज़ आती है तो वो लौट लौट के कलाएं आती रहती हैं, और जो ह्यूमन नेचर है उसके अंदर ये है कि हर तरह की फैकल्टी को एंजॉय करने की, उसकी समझने की प्रवृत्ति होती है। तो कहीं आप सोचिए कि हम सारे समय प्लेन में यात्रा करते समय फिल्म ही नहीं देखना चाहते, कभी हम गाना भी सुनना चाहते हैं। तो अगर एक किताब ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने बिस्तर तक ले जा सकते हैं, जो आपके सीने पे रख के आपके साथ सो सकती है, तो आप ये समझिए कि ओटीपी के आने से साहित्य खत्म होगा, या लुगदी साहित्य, या जो भी आप कहिए, ऐसी कोई चीज नहीं। सभी चीज लोगों के लिए जगह है, और बहुत जगह है, हर विधा के लिए बहुत जगह है। कम से कम मेरा ये मानना है। बिल्कुल। Thank you. सवाल एक मिनट इतना में- रोचक है कि हमारे पैनलिस्ट सत्यार्थ जी भी इस पर अपना विचार देना चाहते हैं। सत्यार्थ जी। 1 मिनट में रिएक्ट ये करूँगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे आलस को भी, जो हमारा कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, उसके आलस को, एक सामाजिक आलस से उसके अंदर है कि वो इमेजिन नहीं करना चाहता। किताब आपके लिए इमेजिनेशन का स्पेस छोड़ती है, एग्जैक्टली और ओटीटी उन सारे कलर्स को भर के आपके सामने एक रेडीमेड चीज़ देती है। जी। तो आप रेडीमेड, अब तो हम रेडी टू यूज चावल भी खाना चाहते हैं और पालक पनीर भी खाना चाहते हैं। तो ओटीटी लगभग यही उपलब्ध करा रही है। किताब कभी नहीं मरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शब्द ब्रह्म है। जी, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सत्यार्थ जी।
चर्चा को विराम देते हुए अगले कार्यक्रम के लिए जगह बनाते हैं। अपनी दो लाइन से एक और सवाल हो मैडम? सकता है क्या? हम हमें संचालिका महोदया से एक बार पूछ लेना होगा। हाँ जी मैम। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत रेलेवेंट भी है। जी। और जैसे ओटीटी उन्होंने बताया, रिलेटेड ही अब एआई की ज़िंदगी में जब एआई लिखने लगा है सब लिटरेचर, तो ये क्रिएटिविटी को कैसे आएगा? हमारा जो क्रिएटिविटी है वो क्वॉश हो रहा है, तो हम कैसे उसको सुधारें? यही चिंता है कि आगे की हमारी अपनी हम अपना ह्यूमन माइंड्स शुड नॉट लूज देयर इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी इन द एरा ऑफ एआई। इस पे आपका क्या राय है? कोई भी जवाब दे मैडम, सकते अभी हैं। आपने जो चीज कही ना, उसका उत्तर उसी में निहित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के पहले जो चीज लगी है आर्टिफिशियल, वही इसका स्पष्ट उत्तर है कि वो कृत्रिम है। अगर आप स्वाभाविकता, जैसे भी आपने कहा रेडी टू ईट, आप बिरयानी, दाल चावल सब कुछ मिलता है, उसमें 8 मिनट आप गर्म पानी डालिए, वो आपको तैयार मिलता है। क्या आप उस स्वाद की कल्पना कर सकते हैं जो आपने खुद बनाया हो या आपके लिए आपके किसी प्रिय ने बनाया हो, सामने बना के दिया हो? दोनों के स्वाद में जो फर्क होगा वो किताबों में और एआई में हमेशा रहेगा। मैम बस जस्ट की जो कैरेक्टर है कर्नल रंजीत का, जो पल्प फिक्शन में बहुत दिन तक चला, और विशाल जो अभी नए बने हैं, कोई भी कैरेक्टर को एआई उस हिसाब से नहीं निकाल सकता। अगर मैं ये कहूँगा, क्योंकि कैरेक्टर वो एक राइटर का ही इमेजिनेशन होता है और कैरेक्टर का मूव वो राइटर का ही होता है। बहुत धन्यवाद आपके बहुत ही उम्दा सवालों के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूँ अपनी 2 लाइनों से कि किताबों का मौसम हमेशा सदाबहार होता है। किताबों का मौसम हमेशा सदाबहार होता है। बस्ते, लाइब्रेरी और घर हर उम्र में आपका और हमारा साझेदार होता है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए। और ब्रिगेडियर रजनीश जी ने बड़े अच्छे से मॉडरेट किया सेशन। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि एएलएफ की को फाउंडर श्रीमती प्राची नाइक जी को वो मंच पे आए और हमारे सारे पैनलिस्ट को सम्मानित करें। हाँ जी बिल्कुल।